Hello guys, welcome to my channel AI Math Zone. And this is Aminul Islam, and once again with the chapter relation. Due to my illness, I couldn't upload any video for the very long time, and from this now, surely I will upload the videos every day. So I have introduced you already to the chapter relation, right? And today we are going to discuss about the definition of relation. So this is the definition of relation. Okay, so what is the definition? A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is the subset of the Cartesian product A cross B. So A और B जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट ले लो, वही हो जाएगा रिलेशन. एंड नाउ आई विल टेक एग्जांपल एंड we will describe what is domain, codomain and range of a given relation, right? So let's take this example. The relation R is given here by this one. So R equals to xy such that y is equals to x plus 1. Am I right? And xy belongs to A, right? Now see here, what is A? A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? This one. Now for each and every x, you will get the corresponding y. See here, if we put here x equals to 1, then y equals to 2. If we put here x equals to 2, then y equals to 3, and so on, right? So if we take the arrow diagram, then you will get this one. Suppose this one is A and another one is this one. Both the set is A. Mind it, this is also A, right? So the relation is from A to A. जब ऐसा कोई रिलेशन होता है from A to A, तब उसको हम लोग from A to A नहीं बोल के बोलेंगे a relation R on the set A, right? Okay, so this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? And this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 and 6. We have to find one is related to which element. सारे वैल्यूज है, ये सारे वैल्यूज हम लोग चूज कर सकते हैं फॉर x, और यहाँ पर जो वैल्यूज होगा फॉर y, राइट? ये सब कुछ यहाँ पर y का वैल्यू होगा, ऐसा कोई बात नहीं है. कौन सा होगा ये हम चूज करेंगे. Anyway, so if we put here x equals to 1, then y equals to 2. So 1 is related to this, one is related to 2. This one 2. If we put here 2, then y का वैल्यू कितना होता है 3. So 2 is related to 3 and 3 is related to 4 and 4 is related to 5 and 5 is related to 6. See here, there is element 6 which is not related to any element of A, right? And यहाँ पर जो देखो हर एक एलिमेंट 1 के लिए यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट है 2, राइट? यहाँ पर 2 एक एलिमेंट है जो सिर्फ 3 के साथ रिलेटेड है. तो यहाँ पर ये जो सेट है, इस सेट के अंदर जो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स all these elements which are related to some elements of the second set, इसको हम लोग बोलेंगे domain of the relation. So this is the domain, right? This one. और यहाँ पर देखो second set में सब एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है. All the elements are not related of the second set, right? So these elements, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं सेकेंड सेट का, वो सारे एलिमेंट्स जो सारे एलिमेंट्स फर्स्ट सेट का किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे इमेज सेट. सो दिस इज द इमेज ऑफ आर. सो इमेज सेट और रेंज सेट, राइट? इसको इमेज सेट और रेंज सेट ऑफ द रिलेशन आर, राइट? और यहाँ पर देखो सिर्फ वन सिंगल एलिमेंट है 1, जो यहाँ पर किसी एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है. अब जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है और जो नहीं जुड़ा हुआ है, ये सारे एलिमेंट्स को लेकर जो सेट होता है, मतलब सेकंड वाला सेट जो होता है, उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं. सो दिस होल सेट A इज अ कोडोमेन, राइट? सो दिस सेट इज कोडोमेन.
codomain of R. Okay, this is the arrow diagram of the given relation R, and this is the domain, range, and codomain. Right now, if we want to write the relation R in roster form, then what we will get? See here, R equals to, you can write here, R is equals to, see here, 1 is related to 2. So the first element will be 1 and second element will be 2. Exactly. So the order pair is 1, 2. Next one is 2, 3. Next one is 3, 4. And next one is 4, 5. And next one is 5, 6. So this is the roster form of the given relation R. And now we will discuss exercise 2.2. So this is the first question, right? And the question says that a set, non-empty set A contains 14 elements, right? 1 to 14. And the relation R is given by 3x minus y is equals to 0, where x and y belongs to A. Now, you have to show this relation using the arrow diagram, and you have to find the domain, codomain, and range of the relation. Okay, so let's solve it. And this question is exactly same as the previous example, right? Okay, so solution. So the relation R is given here from A to A, right? And it contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 14, right? And this is the another set A, right? And it also contains 1, 2, 3, 4, 5, 6 dot 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 up to 14, right? This one. Now see here, the relation R is given by 3x minus y is equals to 0, right? So this implies that y is equals to 3x, right? Now we have to put all these values for x, and you will get the corresponding y, right? So if we put here x equals to 1, then you will get y equals to 3. So definitely this element is related to 3, this one. Now next, if we put here x equals to 2, then it will be 6. So 2 is related to 6, right? This one. If we put here 3, then 3 3 is a 9. So there will be a element for 3, 9, right? And if we put here 4, then 4 is related to 3 4 the 12. So this is related to 12. And if we put here 5, 3 5 is 15, and there is no element 15 in the second set, right? So these are the 3 elements which is related to each other, right? 4 elements definitely. Okay, now this is the arrow diagram of the relation R. So this is R, relation R, and this is the arrow diagram. And also you have to find the domain, codomain and range. So domain के बारे में मैंने क्या बोला, फर्स्ट सेट का वो सारे एलिमेंट्स, जो सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट में किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ उस एलिमेंट को लेकर जो सेट बनता है वही हो जाता है डोमेन. सो द डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4. सो 1 2 3 4, राइट? सो रेंज क्या होगा, रेंज इज इक्वल्स टू सेकेंड सेट में कितने सारे एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स है, 3 6 9 12. सो 3 6 9 एंड 12. और अगर कोडोमेन के बारे में बोले तो वो हो जाता है सेकेंड सेट. यहाँ पर सेकेंड सेट क्या है, ए. सो कोडोमेन इक्वल्स टू ए. सो these are the domain, codomain and range, and this is the arrow diagram. Okay, next question, and this is the second question, right? And the question says that R is defined on a set natural number, right? And defined by, here R is given by order pair xy, where y is equals to x plus 5, right? Where x is less than 4 and x and y both belong to natural number. And you have to write the roster form of the relation, and you have to write the domain of the relation, and you have to write the range of the relation, not codomain. codomain लिखने का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है. तो चलो लिख डालते हैं. सो यहाँ पर रिलेशन जो दिया हुआ है, r is equals to xy, right? Such that y is equals to, such that y is equals to x plus 5. यही है ना, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और यहाँ पर जो x है वो लेस देन
4 है, राइट. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द r इन रोस्टर फॉर्म. सो यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x प्लस 5. Therefore, this equals to, if we put here, mind it, x and y both are from natural number. So पहले वाला natural number क्या है? 1. So you have to put here 1. So 1, if we put here 1, then 5 plus 1, 6, when x equals to 1. So equals to 7 when x equals to 2. So this equals to 8 when x equals to 3. So this equals to 9 when x equals to 4. See here, can you take this one? No, because the instruction is given here, x is less than 4, not less than equal to, right? So that's why you can't take this one, right? So you have to take up to 3. So this is the corresponding x value and this is the corresponding y value, right? So the roster form, therefore the required roster form of r is equals to 1 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? 6. So 1 6. 2 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? 7. So 2 7. 3 के साथ कौन जुड़ा हुआ है? 8. So 3 8. So this is the required roster form, right? और ये जो roster form है, ये roster form का पहला वाला जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स को लेके लिख दो, जो सेट बनता है वही हो जाता है डोमेन. सो डोमेन इज इक्वल्स टू 1 2 and 3 and range इक्वल्स टू सेकंड जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स को ले लो, 6 7 8. सो 6 7 and 8. सो दिस इज द आंसर. ओके, I guess this is very easy, na? Question number 3 is very easy and same as question number 2, so you can solve it. I am going to the next question, that means question number 4. So let's solve it. So यहाँ पर 4 में जो क्वेश्चन है वो है वाला, यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहे हो, यहाँ पर वो डायग्राम P से Q एक रिलेशन है और P where 2 से P and Q, right? P Q. This is 5 6 7 and 3 4 5, right? And 5 is related to 3, 5 is related to 3, 6 is related to 4 and 7 is related to 5, this one. So this is the relation. You have to write this relation in roster form and in set builder form, and you have to write the domain and range, right? So roster form, so in roster form r is equals to, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को, पर्टिकुलर एलिमेंट्स को तुमको लिखना पड़ेगा, राइट? और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वहां पर बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ता है, दैट मीन्स फॉर्मूला फॉर्म में लिखना पड़ता है. एनीवे, सी हियर, सो 5 इज रिलेटेड टू 3, सो दिस विल बी 5 3. नेक्स्ट 6 इज रिलेटेड टू 4, सो 6 4, दिस वन. एंड 7 इज रिलेटेड टू 5, दिस वन. माइंड इट, you shouldn't write here 3 5, right? Because see the arrow, 5 से 3, right? So first element is 5, second element 2. Okay, anyway, so this is the roster form. So roster form. अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में r is equals to, देखो यहाँ पर जब तुम सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहते हो तो तुमको ऐसा एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा या फिर ऐसा एक रूल लिखना पड़ेगा, जिस रूल सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है. सी हियर, इफ वी ऐड 2 with this element then you will get this one. If we add to this element, 2 मतलब 2, अगर इसके साथ मैं 2 जोड़ दिया तो वो एलिमेंट मिल जाएगा. यहाँ पर भी सेम. सो यहाँ पर जो सारे एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स के लिए ये रूल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. क्या है? सेकेंड एलिमेंट के साथ 2 ऐड कर दो, मिल जाएगा फर्स्ट एलिमेंट. दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू, सॉरी, x इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट पाने के लिए सेकेंड एलिमेंट के साथ 2 ऐड करना पड़ता है. सो x इक्वल्स टू y प्लस 2 implies that y is equals to x minus 2. So this is the rule you have to write in set builder form. So r equals to xy such that
y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, और यहाँ पर क्या है, x कहां से बिलोंग करता है, फर्स्ट एलिमेंट से, दैट मीन्स p से, और y कहां से, सेकेंड सेट से, दैट मीन्स q से. So x belongs to p and y belongs to q. So this is the set builder form. अब डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकेंड सेट का किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर p जो फुल सेट है ये हो जाएगा डोमेन. सो डोमेन इज इक्वल टू p, और कोडोमेन क्या हो जाएगा, q, एंड को डोमेन इज इक्वल टू q. सो दिस इज द आंसर. एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पर जो सेट गिवन है वो है a इज इक्वल टू कितना है, a is equals to 1 2 3 4 6, right? And the relation R is given by R equals to AB, where B is exactly divisible by A. That means second elements को exactly divisible होना पड़ेगा फर्स्ट एलिमेंट से, right? और यही रूल फॉलो करके तुमको R को लिखना पड़ेगा. So R का जो रोस्टर फॉर्म है उसको लिखना पड़ेगा. That means you have to write all the elements of R and domain and range of R, right? So see here, this is the set A, 1 2 3 4 and 6. This is another element, sorry, this is another set A, 1 2 3 4 and 6, right? Next, so you have to choose the second element from this set and you have to choose the first element from this set, though the both set are same. Okay, so second element should be divisible by first element, right? That means जब फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लिया तब सेकंड एलिमेंट वही सारे एलिमेंट लेंगे जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं. सो द रोस्टर फॉर्म ऑफ आर, सो द रोस्टर फॉर्म ऑफ आर इज r equals to, see here, if we choose the first element 1, then what will be, अगर हम यहाँ पर 1 चूज करते हैं, सो यहाँ पर गिवन क्या है कि ए बी एलिमेंट तभी रहेगा अगर पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है. तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग 1 को चूज करते हैं तो ये 1 को तो डिवाइड कर सकता है. सो 1 विल बी रिलेटेड टू 1, ये 1 तो 2 को भी डिवाइड कर सकता है, रिलेटेड टू 2, ये तो 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 किसी भी एलिमेंट को डिवाइड करेगा, इसीलिए ये 1 जो है वो सारे एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाएगा. अब देखो 2, यहाँ पर जो 2 एलिमेंट है वो किस किस एलिमेंट को डिवाइड कर सकता है. सो डेफिनेटली इट विल डिवाइड 4, it will divide 2 and it will divide 6, this one, right? One more thing, if we take 3 then it can divide 3 and 6, right? Now if we choose 4 then it can divide only the element 4, this one. So these are the elements you have to write in roster form, right? So 1 1, so 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 6. नेक्स्ट 2 के साथ कौन सा जुड़ा है, 2 2 2 4 2 6, सो 2 2 2 4 एंड 2 6. नेक्स्ट 3 के साथ कौन, 3 3 3 6, so you can write here 3 3 3 6, right? 4 के साथ कौन है, सिर्फ 1 एलिमेंट 4 4, this one, और 6 के साथ कोई भी जुड़ा नहीं हुआ है. ओके, सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म, राइट? नाउ द डोमेन, सो द डोमेन इक्वल्स टू फर्स्ट सेट का कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ये पहला वाला जो 4 एलिमेंट है वही, सो 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज द डोमेन. और रेंज क्या होगा, एंड रेंज इज इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट में देखो हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, सो 1 2 3 4 6, that means the whole set A, right? So this is the answer. Question number 6 and 7 are very easy. I am going to discuss question number 8 and you should try question number 6 and 7, right? So question number 8, what does it say?
यहाँ पर दोनों सेट दिया हुआ है, सेट ए which contains x y z, so a is equals to x y and z, or b another set which contains 1 2. We have to find the number of relation from a to b. दोनों सेट दिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देख ही पा रहे हो, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है। अब क्वेश्चन ये है कि कितने सारे रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, राइट? ओके, नाउ चलो डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद एक जो फॉर्मूला है उसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो डेफिनेशन क्या है रिलेशन का कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका जितने सारे सबसेट बनाया जाता है वो सारे सबसेट को लेकर वो सारे सबसेट का एक एक सबसेट हो जाता है रिलेशन, राइट? नाउ सी हियर, मान लो कि यहाँ पर एक सेट है ए और ए सेट का ये कोई भी सेट, और इस सेट का जो सारे सबसेट्स होता है उसको हम जिस सेट में लिखते हैं उसको क्या बोलता है? पावर सेट, राइट? सो ऑल द सबसेट्स बिलोंग्स टू पावर सेट. So power set of A is equals to P such that P is a subset of A. यही है ना पावर सेट का डेफिनेशन. सो पावर सेट का अंदर वो सारे एलिमेंट्स रहता है जो ए का सबसेट है. ये जो बार बार बोल रहा हूं कि सबसेट और पावर सेट, इसको क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज दिस इज वेरी इसेंशियल टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, राइट? अब मान लो कि दो सेट है और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानते हैं, तो हम लोग क्या उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं? यस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस वीडियो. सो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसका कार्डिनलिटी नंबर कितना होता है? कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी, यही हो जाता है ना. और एक बात तुमको याद होगा कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसको हम जब लिखते हैं तो ए पावर सेट के अंदर जो सेट होता है उसका कार्डिनलिटी नंबर किसका पावर में रेज होता है? 2 के पावर में. सो दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए, यही हम लोग लिखते हैं, राइट? सो अगर यही होता है तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखे कि कार्डिनलिटी नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट? सो ये तो एक सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? सो दिस इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस वन P के अंदर जो रहता है उसका कार्डिनलिटी नंबर. सो P के अंदर कौन है? A क्रॉस B. सो उसका कार्डिनलिटी नंबर रेज हो जाएगा 2 के पावर में. सो 2 टू द पावर कार्डिनलिटी नंबर ऑफ A क्रॉस B. दिस वन. अब कार्डिनलिटी नंबर ऑफ A क्रॉस B, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कार्डिनलिटी नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी नंबर ऑफ B. सो दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी नंबर ऑफ B, राइट? दिस वन. सो दिस इक्वल्स टू, अब देखो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए कितना है? 3, और कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी कितना है? 2. सो हियर कार्डिनलिटी नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 एंड कार्डिनलिटी नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2. सो यू कैन राइट हियर 2 टू द पावर 3 into 2, that means 2 to the power 6, that means 64. So this is the answer. This relation R is defined on the set of integer. ये जो इंटीजर का सेट है Z, उसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड है. और ये रिलेशन जो डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है? R इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए और बी दोनों बिलोंग करता है Z पर, एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू इंटीजर, राइट? सो ए और बी दोनों को चूज करने पड़ेगा इंटीजर सेट से, और a माइनस बी एक इसको हमेशा इंटीजर होना पड़ेगा. अगर a और b एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी वो R के अंदर रहेगा. अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अगर हम इंटीजर सेट से, दैट मीन्स Z से अगर हम लोग चूज करते हैं कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, और उसको अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो हर वक्त इंटीजर ही होगा, राइट? चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, 0 भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर होगा, राइट? सो यही से पता चलता है कि हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है हर एक एलिमेंट के साथ. सो यहाँ पर जो सेट है Z, और यहाँ पर भी एक सेट Z ले लेते हैं, तो 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इधर भी -1 -2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी. यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 डॉट डॉट
-1 -2 dot 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 up to infinity, right? So see here, if we take the a as 2, मान लो कि यहाँ पर 2 ले लिया, a के जगह पे 2 लिखा, राइट? अब b कहां से लेना पड़ेगा? सेकंड सेट से। अब यहां से कोई भी एलिमेंट चूज करो, मान लो कि यहाँ पर 3 लिखा, सो 3 इज इक्वल टू -1, ये तो एक इंटीजर ही है। मान लो कि यहाँ पर 0 ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा, सो ये भी तो इंटीजर है। ऐसा यहाँ पर कोई भी एलिमेंट चूज कर लो फ्रॉम जेड, यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट चूज कर लो फ्रॉम जेड, और हर वक्त इंटीजर ही होगा, राइट? और एक्चुअली दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। एनीवे, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं। सो हर एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? सो now you have to find the domain and range, right? So क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जब हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो डोमेन कौन सा होगा? होल सेट। सो द डोमेन equals to the whole integer set z and range is equals to the whole integer set z. Okay guys, thank you so much. Hope all of you have enjoyed my video. फंक्शन के बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।